Hello and welcome to CVR News Network, and you're watching CVR English Inside News, and I'm Sandeep. BJP leader C.R. Kesavan criticized Congress for undermining constitutional institutions, calling their recent actions a threat to democracy. He referred to Congress' history of electoral malpractice, citing 1975 conviction of Indira Gandhi for electoral fraud and 1989 reports of booth capturing by Congress during elections. Kesavan condemned the Congress Working Committee's resolution on EVMs, questioning the validity and the lack of consensus within the party. He also accused Congress of attempting to deflect blame for their electoral defeats, particularly in Maharashtra, by targeting EVMs rather than addressing internal issues within the Gandhi dynasty. He warned that if Congress continues its current course, it risks being consigned to the footnotes of history. The failed and frustrated Congress party, which is maliciously character assassinating our constitutional institutions, poses a very dangerous threat to our nation and democracy. The Congress party has been a fountainhead of electoral malpractices in the past, and yesterday's CWC resolution is a mockery and it is deplorable. The Congress party should be reminded, and also our younger generation should know, that in 1975, Prime Minister Indira Gandhi was convicted of electoral fraud. The Allahabad High Court found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice and disqualified her from holding any elected office or position for 6 years. So grave were the charges, and this Congress party is now talking about the integrity of electoral process. People should also remember in 1989, it was widely reported in international newspapers that when Rajiv Gandhi was contesting against Mahatma Gandhi's grandson in Amethi Lok Sabha in 1989, the ruling Congress party captured 97 electoral booths and polling stations. This is the sordid history of the Congress party. The Congress Working Committee, which passed a resolution, should also answer this question. They said 81 people participated in an extended working committee meeting. You had recently a very senior finance minister and home minister and also a working committee member who said he has no problem with electronic voting machines. He says it is perfectly fine. He doesn't subscribe to the Congress, fallacious theory of questioning the EVMs, and he said we should not go back to ballot paper. Was his view taken into account? Was this deplorable Congress resolution about EVMs unanimous, or was there a division? Why doesn't the Congress party come out and explain that? First, they should keep in mind that they should not lie and they should tell truth before the people. And another important thing, you had a news report, I think yesterday, which said the Congress party was very aware that in the Maharashtra elections, that the Mahayuti was heading for victory, and in all categories. Samajwadi Party leader Ravidas Mehrotra expressed concerns over the heavy police deployment that prevented a 15-member SP delegation from visiting Sambhal. He criticized the restrictions which stopped them from meeting the families of victims and offered condolences. Mehrotra stated that their mission was to promote peace and comfort the families of 5 victims as well as meet with the injured. He also demanded the removal of district magistrate and SSP, holding them accountable for the incident, and called for an independent inquiry by a sitting High Court judge, citing the involvement of local authorities in the situation. Mehrotra condemned the fear being installed in the public, preventing them from leaving their homes, and warned that SP would continue its peaceful protest if the delegation was obstructed. घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन अखिलेश जी घर पर गए थे और उनसे मिल करके। कैसे जाएंगे? अभी तो पुलिस ने यहाँ पे भी रोक रखा है, कह रहे हैं वहां जाने का वो नहीं है, वहां धारा 163 लागू है। हम लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे, और हमारा उद्देश्य वहां पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहां के डीएम और एसएसपी, उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। इंक्वायरी बिठा दी है सरकार ने। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं
जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों खुद शामिल हैं और वहां पर डरा रहे हैं लोगों, जनता को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। कैसे जाएंगे अभी आप? हम लोग अभी वार्ता करेंगे और लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ निकलेंगे। अगर रोका जाएगा तो या धरना देंगे। हम लोग यहाँ पर शांत कायम करने जा रहे हैं और उस पर जाके रहेंगे। उनको रोका गया? In Patna, JDU leader Neeraj Kumar commented on recent political developments, expressing concern over the opposition's alleged disregard for parliamentary decorum. Referring to Congress leader Rahul Gandhi's remarks abroad on internal matters, he emphasized the importance of upholding the dignity of parliamentary democracy, citing instances of controversial statements, including those by Congress Bhai Jagdip and Mallikarjun Kharge, and BJP leader Kangana Ranaut. He criticized the lack of respect for constitutional institutions and political discourse. Kumar highlighted the need for all parties to focus on constructive dialogue within established frameworks, including joint parliamentary committees. तो इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा कहा था। आज क्या हालात है? देश के आंतरिक मामलों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। संसदीय लोकतंत्र में संसद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना ये सब की जिम्मेवारी है। अब जैसे वक्फ बिल पर संसदीय समिति बन गई, संयुक्त संसदीय समिति है, हर एक राजनीतिक दल की भागीदारी है, वहां अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बाहर सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हैं इस पर। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो पूरे तौर पर संसदीय गरिमा को ही प्रश्न के घेरे में विपक्ष की राजनीति ने ला दिया है। यह चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है भाई जगताप, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुत्ता कह दिया और बोलते हैं हमें कोई अफसोस नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं। अब तो आजकल भाषाई लंपट बढ़ गए हैं। राजनीति में न कानून का ज्ञान है, न संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर का भाव है। जो जिस संसद और जिस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी लोग लेते हैं, आज उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। यह दुखद पक्ष है। सीडब्ल्यूसी की कल मीटिंग थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के तो इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा कहा था। आज क्या हालात है? देश के आंतरिक मामलों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। संसदीय लोकतंत्र में संसद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना ये सब की जिम्मेवारी है। अब जैसे वक्फ बिल पर संसदीय समिति बन गई, संयुक्त संसदीय समिति है, हर एक राजनीतिक दल की भागीदारी है, वहां अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बाहर सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हैं इस पर। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो पूरे तौर पर संसदीय गरिमा को ही प्रश्न के घेरे में विपक्ष की राजनीति ने ला दिया है। यह चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी की BJP leader Shehzad Poonawalla reacted sharply to recent developments, including Congress leader Bhai Jagdip's remarks, statements by PM Modi and Congress President Mallikarjun Kharge, and controversies surrounding Congress-AAP dynamics. Referring to the Sambhal incident and the UP Waqf Board claim over Varanasi's Uday Pratap College, Poonawalla accused the opposition of divisive politics. He also condemned reports of defamatory audio targeting Rahul Gandhi played on Himachal Pradesh government bus, calling accountability while emphasizing the need for respectful political discourse. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। राष्ट्रपति जी का अपमान किस प्रकार से संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने किया, फिर जुडिशरी का लगातार अपमान करना जब केस हारते हैं, इलेक्शन कमीशन का अपमान करना जब चुनाव जीतते हैं। वायनाड में ईवीएम ठीक होता है, झारखंड में ईवीएम ठीक होता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक होता है, परंतु हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम कभी गड़बड़ हो जाता है। और अब तो ईवीएम को कुत्ता और इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोलना, ये दिखाता है कि ये ना
संविधान का सम्मान है, न मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी जी बताए कि संविधान की बड़ी बातें करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर जो लगातार कुठाराघात कांग्रेस पार्टी करती है। आज क्या कहेंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता? क्या भाई जगताप से माफी मंगवाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेते हुए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल इनका विश्वास केवल परिवार तंत्र पर है, संवैधानिक तंत्र पर नहीं है। इसीलिए ये एंटाइटल्ड डायनेस्ट जब चुनाव हारते हैं या जब कोई केस हारते हैं तो संवैधानिक पदों को, संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री को तो 125 से ज्यादा गालियां दी है। तो यही इनकी मानसिकता और फितरत है। तो भाई जगताप कॉल्स द इलेक्शन कमीशन अपोलोजाइज। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान इज कांग्रेस पहचान। This is not a coincidence. It has become a habit of Congress party. First, they insulted the honorable president on Samvidhan Divas, the way Rahul Gandhi behaved. Then they insulted judiciary by doubting judiciary in many cases and instances. And now they are doubting the election commission. When they win the election in Jharkhand, Jammu Kashmir, Wayanad, Karnataka, Telangana, election commission EVMs are fine. Otherwise, in Haryana and Maharashtra, they become kutta. This shows that Congress is neither मोहब्बत की दुकान nor they do संविधान का सम्मान. They are only the ones who are doing संविधान का अपमान. And today Rahul Gandhi must tell us, just roaming around with the संविधान copy does not matter. This is the mindset which puts परिवार तंत्र above लोकतंत्र. So if their परिवार loses, they say democracy is in danger, institutions are not working properly. This is the elitist dynastic mindset of Congress party, which abuses every constitutional position. Even the Prime Minister's position has been abused over 125 times by the Congress party. सर तो भड़का रहा है, गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खासकर हमेशा ये सोचती रही है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो अपने आप को, अपने परिवार को देश के ऊपर और अपने हितों को देश के हितों के ऊपर रखती है। और इसीलिए जब 60-65 साल राज करने के बाद जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया, कांग्रेस को 10 साल से बाहर रखा है सत्ता के, तो कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार नहीं पाती और कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, चुनाव हारती है। कांग्रेस पार्टी कभी अन्य संस्थाओं पर सवाल उठाती है लोकतांत्रिक, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मोदी विरोध में और बीजेपी के विरोध में, देश के विरोध में उतरने से कतराती नहीं है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को गालियां बकी जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारे, परंतु वही इलेक्शन कमीशन ठीक होता है जब वो वायनाड में और झारखंड में और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतते हैं। जब जुडिशरी इनके पक्ष में कोई फैसला दे दे तो जुडिशरी ठीक होता है, वरना ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी जो है दबाव में काम करती है। तो इसका मतलब साफ है, उनको लगता है कि इंडिया इज इंदिरा। अगर परिवार पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है, और इसीलिए आज जनता ने उनको नकारा है। पर जनता के नकारे जाने के बाद भी उनकी हरकतें बदल नहीं रही है। वो आज भी जैसे एक मछली बिना पानी नहीं रह सकती, कांग्रेस बिना सत्ता नहीं रह सकती, और इसीलिए सत्ता की Uttar Pradesh Assembly Leader of Opposition Mata Prasad Pandey alleged that the state government deliberately prevented him from visiting Sambhal. He claimed that administration has failed to provide a written notice as required by rules, informing him that he could not go. Pandey expressed frustration that while the Justice Commission and media personnel were allowed to visit, he was blocked, suggesting that the government was attempting to hide its actions. He also criticized the Sambhal Commissioner, calling him an Udharu commissioner, implying incompetence. नहीं थे, जाना होता तो चुपचाप कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का, कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे
और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि तब आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो, संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते? सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप। देखिए, ये आप सुनो, ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों। D.K. Singh, principal of Uday Pratap College, explained the 2018 notice from UP Sunai Central Waqf Board requesting land registration for a tomb and mosque on college premises. He clarified that the land belonged to an endowment trust and under the Charitable Endowments Act, it could not be claimed by the Waqf Board. Singh also mentioned that the college had intervened to halt illegal construction and authorized electricity use by the mosque, informing that the local police and cutting off the power supply due to lack of proper documentation. वक्फ बोर्ड की नोटिस यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को, जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में, उसकी जमीन के संदर्भ में और उससे रिलेटेड और भी जो जमीन है उसके संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए। और ऐसा इन्होंने वसीम अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ कोई है उनके आवेदन पर भेजा था हमको नोटिस। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। लेकिन तत्काल हमारे जो है उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि यूपी कॉलेज का संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने तत्काल इसका जवाब दिया और बताया कि कुछ लोग कॉलेज परिसर के शैक्षणिक परिवेश में विकृति पैदा करने हेतु किसी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा भ्रामक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह जमीन जो है इंडाउमेंट ट्रस्ट की है और चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मामला जो है यहाँ से लिख के चला गया। उसके बाद कुछ नहीं आया था। बीच में वहां पे ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया, जो भी निर्माण सामग्री थी और जो भी वहां पे अवैध निर्माण कराए जाने का प्रयास था वो सब खत्म कराया और पुलिस को सूचना दिया। पुलिस हमेशा वहां पे हरकत में रहती है और इसके अलावा जो है अवैध तरीके से ये लोग जो है हमसे जो है हमारे बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के चला रहे थे, उसको भी हमने कटवा दिया है। वर्तमान में ये लोग जो है बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं ले पाए। इसलिए नहीं ले पाए हैं कि इनके पास कोई भी दस्तावेज मस्जिद के संबंध में नहीं है।
सर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार बहुत सारी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकते आया है, तो यूपी कॉलेज पे इस तरीके के दावे को लेके आप लोग आगे किस तरीके से? नहीं, दावा ठोकता है, उसका जवाब हमने दिया है और वर्तमान में कोई इस तरह की समस्या नहीं है। मस्जिद का निर्माण या मजार का निर्माण कैसे हुआ, क्या है, ये सब बातें नहीं है। लेकिन विगत के 3 वर्ष से जो भी कानूनी तौर तरीका है, जो भी कानूनी उपचार है, हम सब ले रहे हैं और पुलिस को लगातार सूचित करते हैं। एक कांस्टेबल के अधिकारी वहां पे लगातार रहते हैं, तो कोई भी अगर अवैध कार्य अगर हो रहा है या होता है तो इस संबंध में हम तत्काल उसकी सूचना जो है सरकार को देंगे। और जो नया वक्फ कानून इसीलिए आ रहा है कि इस तरह से अवैध तरीके से जो है संशोधन के लिए प्रस्ताव जो है माननीय वर्तमान सरकार ने इसीलिए किया है कि इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स जो है अन्य संस्थाओं के सामने ना आए। यूपी कॉलेज की क्या स्ट्रेंथ है और यूपी कॉलेज में लगभग 100 एकड़ जमीन है। इसमें 5 संस्थाएं जो है वो उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें उदय प्रताप ऑटोनॉमस, उदय प्रताप कॉलेज, उदय प्रताप स्वायत्त शासी कॉलेज, उदय प्रताप इंटर कॉलेज, रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज, इसके अलावा जो है हमारा राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, ये 5 संस्थाएं लगभग 16। BJP leader Kirit Somaiya condemned the Congress leader Bhai Jagdap's Kutta remark about the Election Commission, calling it an unacceptable insult to the constitutional body. Somaiya stated that he had written to the Election Commission and filed the complaint with the Mumbai Police Commissioner, urging the action be taken against Jagdap. He accused Congress and Shiv Sena of targeting the EVMs, suggesting that the parties were afraid of upcoming Mumbai Municipal Corporation elections in March 2025. चुनाव आयोग का अवमान वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सब नेताएं चुनाव आयोग को गालियां दे रहे ईवीएम, क्योंकि अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने हैं। पराभव दिख रहा है, इसके लिए अभी से नौटंकी शुरू हो गई है। वो कुछ और दर्शाए गए थे और रातों रात जो है आंकड़े बढ़ गए, जिसका फायदा भाजपा को हुआ है और इस तरीके की जीत हासिल कर पाए। वही आंकड़े लगाने के धंधे तो ये मटकाबाज करते थे। एक आंकड़ा देना, शरद पवार ने 2 विधानसभा में आंकड़े दे, चुनाव आयोग ने उनको जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। जो भी कुछ अगर गलत हुआ है तो प्रूफ दो, वरना बहानेबाजी बंद करो। सर, बीते दिनों आप दिल्ली गए थे, मालेगांव और वो पैसे इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया, तो उस बारे में आप बीते दिनों दिल्ली में थे, क्या कुछ जो है जानकारी अब तक सामने आ गई, किन एजेंसियों से मुलाकात की और क्या रिप्लाई मिला? मालेगांव में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा वोट जिहाद के लिए आया, या अब तक जांच एजेंसी के सामने आया है। अभी तक पुलिस, इनकम टैक्स विभाग और ईडी तीनों ने कार्रवाई का प्रारंभ कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई और एनआईए भी इस जांच में जुड़ जाएंगी। ये बहुत बड़ा भारत ऑल इंडिया स्तर का घोटाला है और इसीलिए मैंने सभी एजेंसीज को प्रार्थना की है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष प्रयत्न होने चाहिए। Sir, yesterday Bhai Jagtap from Congress said election commission is that dog which sat outside PM Bungalow. How do you see this? I have written to election commission and also filed a complaint with Mumbai Police Commissioner. Such type of insult, humiliation of election commission, which is a constitutional body, it can't be tolerated. And that's why the action should be initiated against Bhai Jagtap. Another thing is that the last few days, the Congress, Uddhav Thackeray, everybody. Union Minister Jyotiradittya Scindia highlighted efforts to expand banking services in the northeast to support the entrepreneurs with increased interest from the banking sector.
He also noted that the growing trend of solo travelers, especially women, visiting the region for its safety and cultural experiences. Scindia mentioned plans to integrate local music festivals to promote Northeast tourism. Regarding the Kadan project, he affirmed that the government's committee but did not elaborate, and they acknowledged that interest rates are market-driven and outside the ministry's control. लक्ष्मी महोत्सव का इवेंट है, एक इन्वेस्टर समिट है जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अप्रैल मई के माह में, और एक बैंकर्स समिट है। और बैंकिंग को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ले जाने के लिए इसी माह में एक बैंकिंग समिट भी हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आयोजित कर रहे हैं, और सारे बड़े बैंकर्स को हम वहां ले जाएंगे ताकि वहां भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ उनका तालमेल हो और वार्तालाप भी बढ़ पाए, ताकि क्रेडिट की फैसिलिटी और बैंकिंग की फैसिलिटी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में एक नई गति मिल पाए। 104 शर्मा, मैं सनमार्ग से हूँ। आपका ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, इसका है या इंटरनेशनल? And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.